এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর, সংবাদ পরিবর্তন প্রথম আপনাদের সামনে তুলে ধরছে বাংলার হৃদয় মমতা অভিষেকের একনিষ্ঠ সৈনিক অর্থাৎ মল্লিকপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল নেতা শেখ ইসমাইল বর্তমান রাজনীতি নিয়ে সংবাদ পরিবর্তনকে কি জানালেন সরাসরি আপনাদেরকে তুলে ধরা হচ্ছে। নজর রাখুন সেই দিকে। শেখ ইসমাইল সংবাদ পরিবর্তনকে কি জানালেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একনিষ্ঠ সৈনিক অর্থাৎ বাংলার হৃদয় মমতা অভিষেকের একনিষ্ঠ সৈনিক। পেহেলগাঁয়ে জঙ্গিদের হাতে যখন প্রায় ২৬ জন ভারতীয় মারা গেল এবং ভারতীয় জওয়ানকে যখন আটকে রাখা হলো, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ফিরিয়ে আনার আর্জি জানিয়েছিল এবং ফিরিয়েও এনেছিলেন এবং সিঁদুর অপারেশন করে দেখিয়ে দিয়েছিল আমার ভারত শক্তিশালী, আমার ভারত কোনো মতে মাথা নত করতে পারে না। সেখানে দেখা গেছে বিজেপি মন্ত্রীকে বলতে শোনা গেল সেই সন্ত্রাসবাদী বোন হিসেবে আখ্যা দিচ্ছে। কি বলবেন আপনি? নমস্কার, আমি প্রথমে জানাই আমার নাম শেখ ইসমাইল সাজি। দেখুন, বিজেপির কাজ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ানো। যেখানে দেখা যাচ্ছে পেহেলগাঁও আক্রমণ হয়েছে, যেখানে আমাদের মুসলিম বোন গিয়ে আক্রমণ করে সেখানে অপারেশন সিন্দুরকে সাকসেস করছে, সেই জায়গায় অনেকগুলো বিজেপি অন্ধভক্তদের দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান আইএসএস এর সাথে যোগ রয়েছে। বিজেপির কিছু অন্ধভক্ত ইউটিউবার এদের দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান আইএসএস এর সাথে তাদের যোগাযোগ রয়েছে। আসল তো গাদ্দার এরা। এবারে এদের কাজ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে হিন্দু মুসলিম বিভেদ করে, যে যাতে মানুষ আমাদের সাধারণ নাগরিক হিন্দু মুসলিম করে করে এরা ডিভাইড হয়ে থাকে, আর বিজেপি নিজের কাজ করে। এদের কাজই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়া। বাকি আপনি পুরনো ইতিহাস খুলে দেখলে দেশে যা মুসলিমদের যা ভূমিকা আছে, সেখানে ভারতীয় এখন বর্তমান সমাজে অধিকাংশ লোক শিক্ষিত, সেটা আর বলতে হবে না। যারা একটু লেখাপড়া শিখেছে, অন্ধভক্ত বাদ দিয়ে যাদের মাথায় গোবর ভরা তারা বুঝবে না। যারা শিক্ষিত মানুষ, যারা এইসব নিয়ে ইতিহাস নিয়ে কালচার করে, তারা জানে মুসলিমরা কোনোদিনই গাদ্দার নয়, কোনো সন্ত্রাসবাদীর বোন নয়। আমাদের কাছে সন্ত্রাসবাদীর কোনো ধর্ম হয় না। সন্ত্রাসবাদী যে সন্ত্রাসবাদ করবে, প্রথম কথা সে মুসলিম হতে পারে না। ওদের কোনো ধর্ম নেই এবং মুসলিম ধর্মে কোনো সন্ত্রাসবাদকে কোনো চান্স নেই। এই জন্যে আজ পাকিস্তানের সাথে আজ নেই, যখনও যুদ্ধ হবে, যখনও পেহেলগাঁওয়ের মতো যদি আমাদের ঘটনা ঘটে, আমরা एनी वे एनी टाइम আমরা প্রস্তুত আছি। আমরা মাথায় কাফন বেঁধে, सर पे कफन बांध के लड़ने के लिए तैयार है। পাকিস্তানকে আমরা উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবো। পাকিস্তানকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিজেপির কোনো নেতা মন্ত্রী, কোনো অন্ধভক্তর দরকার নেই। মুসলিমদের একটা রেজিমেন্ট করে ছেড়ে দিক না। আমাদের প্রথম কথা, বাংলায় আমাদের একটা আপনাদের চ্যানেলের মারফত আমাদের একটা আমার অনুরোধ, যে আমাদের ভারতীয় সেনাতে অনেক স্টেট থেকে রেজিমেন্ট আছে, আমাদের একটা যাতে বাঙালি রেজিমেন্ট করা হয়। কারণ বাঙালি একটা জাতি, বাংলা বারবার দেখিয়ে দিয়েছে বাংলা সাম্প্রদায়িক উস্কানিকে কোনো গুরুত্ব দেয় না, পাত্তা দেয় না। বাংলা সবসময় আগাগোড়া ইতিহাস সাক্ষী আছে বাংলা সেকুলার। যদি বাংলা রেজিমেন্ট থাকে, আমাদের বাংলা রেজিমেন্টে হিন্দু মুসলিম মিলে আমাদের বাঙালি রেজিমেন্টই যথেষ্ট হবে পাকিস্তান বাংলাদেশকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। প্রশ্ন করুন, অন্য প্রশ্ন করুন। में देखा जा रहा है थोड़ा सा भी बारिश होने से जी पूरा पानी जमा हुआ रह रहा है, इतने दिनों बाद भी वहाँ काम नहीं हो रहा है। क्या बोलिए आप? देखिए, मल्लिकपुर का जो बात है, मल्लिकपुर का एक्चुअल में मल्लिकपुर में कैपेसिटी, मल्लिकपुर पंचायत एरिया है। पंचायत का डेवलपमेंट के लिए जो हम लोग का फंड आता है बहुत कम है। उस हिसाब से मल्लिकपुर में 10% आदमी का फंड आ रहा है। वहाँ पर ही समझिए, अगर 10,000 आदमी का फंड आ रहा है तो वहाँ 2 लाख आदमी वहाँ पर ही वास कर रहा है। तो इसलिए मल्लिकपुर का लिए चाहिए, मल्लिकपुर का सरकार से हमारा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है आपका चैनल का माध्यम से, जो मल्लिकपुर का लिए थोड़ा निकासी व्यवस्था के लिए देखें। हम बहुत दिन पहले से कोशिश कर रहे हैं, बहुत बार रिक्वेस्ट किए। बहुत हम लोग का जिला परिषद नेता जयंतो भद्रो भी आके स्टेज में आके बोल के गया, तो हम लोग निकासी व्यवस्था के लिए रुपया सैंक्शन किए हैं। तो आप लोग का चैनल का माध्यम से उन लोग से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो आप लोग अगर रुपया सैंक्शन किए हैं तो जल्द से जल्द मल्लिकपुर का निकासी व्यवस्था का ठीक कीजिए। इंसान बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशानी में है, क्योंकि
थोड़ा सा 10 मिनट बारिश हो रहा तो मल्लिकपुर में हर जगह भर जा रहा है। ये चीज के लिए जवाबदेही हमारा सरकार है, हम लोग है, मल्लिकपुर ग्राम पंचायत है। तो इसका हल अगर अभी जो भी हो रहा है इसका जिम्मेदार मल्लिकपुर ग्राम पंचायत है, हम लोग है, और हल भी हम ही लोग से होगा। इसलिए हम लोग का नेता काम कर रहा है, हम लोग का हबीबुर रहमान वैद्य साहब काम कर रहा है, लेकिन उनसे भी रिक्वेस्ट है जो जल्द से जल्द निकासी व्यवस्था के लिए उनको जल्दी से जल्दी इंतजाम करके काम शुरू करें, हाइड्रेन का करके किसी सूरत से भी इलाका वासी को पानी के हाथ से बचाए, उनसे रिक्वेस्ट है। और आने वाला समय में ये पानी के लिए जो फेसबुक सोशल मीडिया जो विरोधी लोग जो कर रहा है उनको ये हथियार बनाने ना दे। हम लोग का फर्ज है, हम लोग का प्रशासन, हम लोग का गवर्नमेंट है, प्रशासन हम लोग का है, पंचायत हम लोग का है, एमएलए एमपी हम लोग का है। तो पानी जो जम रहा है इसका जिम्मेदारी भी हम लोग का है और उसको ठीक करने का भी जिम्मेदारी हम लोग का। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है जो भी फंडिंग लगे मल्लिकपुर का आदमी को हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, जो मल्लिकपुर वासी को ये पानी के हाथ से बचाया जाए। इसके लिए अगर हम लोग को कुछ भी करना पड़े, हम लोग को दिन रात मेहनत करने पड़े, हम लोग करने को तैयार है। लेकिन सरकार से रिक्वेस्ट है मल्लिकपुर को ड्रेनेज व्यवस्था को ठीक करे। मल्लिकपुर ग्राम पंचायत से भी रिक्वेस्ट है मल्लिकपुर का ड्रेनेज व्यवस्था को ठीक करे। सैनिक थे जो टीएमसी के लिए अंधभक्त थे, उनको अभी उनका कोई देखा नहीं जा रहा है, कोई पता नहीं मिल रहा है, इसको लेके क्या बोलिए यार? देखिए टीएमसी का जो अंधभक्त थे वो टीएमसी से कुछ लेना देना, टीएमसी पार्टी से लेना देना था, ममता बनर्जी से लेना देना था, माँ माटी मानुष का सरकार से लेना देना था, लिक्विड कुछ लेना देना नहीं था पुराना सैनिक को। इसमें जो नया बाहर से सैनिक आके जो रेडीमेड सैनिक घुस गया है ना दूसरा दल से, ये लोग पहले आके जगह पुराना सैनिक जो भी है वो मांगता है पार्टी पावर में रहे, पार्टी काम करे, उसका काम करने का इच्छा से वो लोग आता है, लेकिन उन लोग को जगह नहीं दिया जा रहा, उन लोग को जो थोड़ा बहुत जो सम्मान है वो भी नहीं मिल रहा है। इसलिए पुराना सैनिक बैठ गया है। अभी भी वक्त है, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी का पास रिक्वेस्ट है, उन लोग अगर चाहे दल को फिर से एक्टिव करे, बूथ कमेटी को मजबूत करे। सारा वेस्ट बंगाल में बूथ कमेटी को मजबूत करने पड़ेगा। बाकी सब अपना जगह में ठीक है, जितना भी लोकल आप अपर लेवल ठीक है, लेकिन लोअर लेवल में हमको मेरा पर्सनल नजरिया है जो लोअर लेवल थोड़ा कमजोर हो रहा है, हम लोग का बुनियाद धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। ये बुनियाद को हिलने ना दे, इस बुनियाद को और भी मजबूत करे, बूथ लेवल को मजबूत करे, हर लेवल में एक तो करके नुमाइंदा दे जो इसको देखेगा जो बूथ लेवल का क्या हाल है। बूथ लेवल में आज कर्मी खोज के नहीं पाया जा रहा। इस बार जो दीवार लिखने का कर्मी है, झंडा बांधने का कर्मी है, ये जो है ये जो अंधभक्त, जैसे बीजेपी का उसी अंधभक्त टीएमसी का भी था, लेकिन इन अंधभक्त को जो मान अभिमान कोई भी अगर प्रॉब्लम है, ये मान अभिमान को तोड़ के लाना अपर लेवल का काम है। अरे थोड़ा सा तो सम्मान चाहिए यार, क्या चाहिए उसको? कुछ रुपया पैसा नहीं चाहिए। पुराना कर्मी को पुराना हिसाब से सम्मान चाहिए। आपका बाप अगर बूढ़ा हो गया, आप घर से असम्मान करके निकाल नहीं देंगे, उनको चाहिए बाप का जैसा सम्मान चाहिए आपको, तब वो अपना औलाद के लिए दुआ करेंगे, मेहनत करेंगे और भी दल आगे बढ़ेगा, और भी इंशाल्लाह आगे और भी कामयाबी होगी। আচ্ছা, আমার লক্ষ্মী ভাণ্ডার থেকে আরম্ভ করে যে প্রকল্পগুলো করেছে আপনাদের মল্লিকপুর এরিয়াতে সবাই কি পেয়েছে? সব থেকে বেশি চাহিদা কোনটা? লক্ষ্মী ভাণ্ডার, স্বাস্থ্য সাথী না আপনার বিধবা ভাতা, কোনটা সব থেকে বেশি চাহিদা মল্লিকপুরে কোনটা? মল্লিকপুরে আমাদের মল্লিকপুর জিপিতে প্রায় লক্ষ্মী ভাণ্ডার আমি বলবো 95% লোক পেয়েছে। আমরা কাজ করেছি, আমাদের দুয়ারে সরকারের মারফত আমরা কাজ করেছি, আমাদের মল্লিকপুর পঞ্চায়েতেও যারা আসছেন তাদের আমরা কাজ করছি। হ্যাঁ, মল্লিকপুর পঞ্চায়েতে একটা সমস্যা দেখা যাচ্ছে, আমাদের বার্ধক্য ভাতা আর বিধবা ভাতা এটা কিন্তু বারবার নাম দেওয়া সত্ত্বে সেটা নাম আসছে না, এটা একটু সমস্যা আছে, এটা নিয়ে একটু দেখতে হবে।